Hello students. Today we will start very interesting and happiness with the topic, and this is the topic festival time. So this topic is very interesting topic for us क्योंकि फेस्टिवल टाइम सबके लिए क्या होता है फेवरेट होता है. सो लेट्स सी द डेफिनेशंस. व्हाट इज़ द फेस्टिवल, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फेस्टिवल. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स आर अ टाइम फॉर फन, सिंगिंग, डांसिंग, जॉय एंड सेलिब्रेशन. इंडिया में क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल हम मनाते हैं और सारे फेस्टिवल एक फ़न टाइम होता है जब हम नाचते हैं, गाते हैं और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसे सेलिब्रेट करते हैं. In India, festivals can be categorized in three types: national festival, religious festival, harvest festival. इंडिया में हम 3 टाइप्स के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं: नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल. The first type of festival is national festival, and basically 3 national festivals celebrated all over India. First, Republic Day. Second, Independence Day. And third one is Gandhi Jayanti. Now first, Republic Day. What is that? Republic Day is celebrated on January 26. On this day in the year 1950, the laws of our country or our constitution become into begin. ओके इस दिन हमारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन, इन हिंदी यू कैन से संविधान लागू हुआ था. ओके कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था. ऑन दिस डे अ ग्रैंड parade is held at Rajpath in New Delhi. The President of India takes salute of the spirit and address the nation. The folk dances, school children and many other from different parts of the country take part in the parade. बहुत सारे स्पेशल कैटेगरीज होते हैं जो कि इस परेड में क्या होते हैं, शामिल होते हैं. The armed and police forces are also part of the parade. आर्मी फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस परेड का हिस्सा होते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज़ आवर नेशनल फेस्टिवल. ओके नाउ सेकेंड इज़ द इंडिपेंडेंस डे. August 15 is the day when India got freedom from the British rule in 1947. 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था. A grand function is held at the Red Fort in Delhi on this day. Prime Minister of India hosts the national flag and address the nation. Prime Minister जो है क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं. Okay, now third type of national festival is Gandhi Jayanti. October 2nd is the birth anniversary of the father of nation महात्मा गांधी. जी हाँ, महात्मा गांधी हमारे क्या है, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन. और इन्हीं के बर्थडे को हम बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं ऑन October 2nd. He was born on this day in 1869. A prayer meeting is held at his samadhi at Rajghat in New Delhi. We must promise to follow his teaching of peace, truth and non-violence. हम उन्हें प्रॉमिस करते हैं, उन्होंने जो हमें शांति, सच्चाई और अहिंसा, नॉन वायलेंस जो सिखाई है उसको हम फॉलो करेंगे पूरी ऑनेस्टी के साथ. Now coming to the second type of festival, it is religious festival. Holi. Holi is also called festival of colors. On this day, people throw colored water and colored powder each other. This festival is celebrated in the month of March. होली हिंदू फेस्टिवल है और इसमें स्पेशली लोगों कलर यूज़ करते हैं, एक दूसरे पे कलर थ्रो करते हैं और इन्जॉय करते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड कलर ऑफ फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ कलर्स. So this is mainly celebrated on the month of March. Now the second type of festival, religious festival, is Diwali, and you can say Deepavali also. Deepavali is the festival of light. It is celebrated in most part of the country in October or November. On this day, Lord Rama, Sita and Lakshmana returned their kingdom after 14 years of exile. वो 14 साल के वनवास के बाद अपने किंगडम में, अपने राज्य अयोध्या में लौटे थे. इसी खुशी पे दीपावली फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती हैं. एंड दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा. और लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है स्पेशली दिवाली पर.
Now the third type is Dashera. दशहरा सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. दशहरा जो है वो क्या है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है. इन वेस्ट बंगाल दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा. नाउ द नेक्स्ट टाइप इज द गुरु पर्व. गुरु पर्व मीन्स फेस्टिवल ऑफ गुरु. इट इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द सिख. ऑन दिस डे सिख गो टू गुरुद्वारा टू ऑफर प्रेयर. स्पेशल मील कॉल्ड लंगर आर कुक्ड इन कॉमन किचन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. इस दिन पे, गुरु पर्व के दिन पे जो सिख है वो क्या करते हैं, स्पेशल प्रेयर करते हैं गुरुद्वारा में साथ बैठकर. वो स्पेशल टाइप मील प्रिपेयर करते हैं, कॉमन किचन में भी वो प्रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विथ रिस्पेक्ट. सो इट इज़ कॉल्ड लंगर. वो लंगर कहा जाता है. इन द अर्ली मॉर्निंग पीपल पार्टिसिपेट इन द ह्यूज प्रोसेसन. Now the next type of religious festival is Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is celebrated to the mark the end of month long period of fasting. It is called Ramzan. People may in large number in mosque. ईद उल फित्र रमज़ान जो एक महीने की होती है, जो कि बहुत ही हॉली मंथ होती है, उसे कंप्लीट करने के बाद मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं. मस्जिद में वो प्रेयर करते हैं. आफ्टर द ईद नमाज और प्रेयर पीपल ग्रीट ईच अदर सेइंग ईद मुबारक. ईद की नमाज जैसे ही ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं. अ स्पेशल टाइप ऑफ डिश, ओके, सेवई, अ स्पेशल स्वीट डिश इज़ प्रिपेयर्ड. चिल्ड्रन गॉट गिफ्ट फ्रॉम एल्डर्स. चिल्ड्रन अपने एल्डर्स से गिफ्ट लेते हैं, जिसे हम स्पेशली क्या कहते हैं, ईदी. Now coming to the next religious festival, it is Christmas. December 25th, the birthday of Lord Jesus Christ is celebrated as Christmas. Every year 25th of December we will celebrate, Christians will celebrate Christmas. Okay, on the eve of Christmas special midnight prayer are held in churches. एक special midnight prayer होता है चर्च में. People decorate the Christmas tree and make palms cake. Children love to receive surprise gift. They believe the Santa Claus brings the gift for them. People क्या करते हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है गिफ्ट्स, और वो ये बिलीव करते हैं कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आएंगे और उन्हें गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फेस्टिवल, इट इज़ कॉल्ड बुद्ध पूर्णिमा. द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा. Buddhists, the follower of Lord Buddha, assemble in temples of offer prayers, offer gifts and money to the poor people. ये अपने बुद्ध पूर्णिमा वाले स्पेशल डे पे क्या करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं गरीबों को, या पैसे से उन्हें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हेल्प करते हैं. दे प्रॉमिस टू प्रैक्टिस पीस एंड काइंडनेस थ्रू आउट देयर लाइफ. और वो प्रॉमिस करते हैं कि हम शांति बनाए रखेंगे और दयालु, एक दूसरे के प्रति काइंडनेस भी क्या करेंगे, हमेशा अपनी लाइफ में शोध करेंगे. नाउ द नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज़ महावीर जयंती. महावीर जयंती इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. जैन धर्म के जो फाउंडर थे, इट इज़ लॉर्ड महावीरा. दिस डे फॉल्स इन द मार्च और अप्रैल, और ये मार्च या अप्रैल में सेलिब्रेट होती है. नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ फेस्टिवल, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट इज द टाइम फॉर द कटिंग एंड गैदरिंग of the crops grown by farmer in their fields. Farmer work hard throughout the year to grow crops. When their crops are ready, it's time to them celebrate their hard work. Harvest festival are celebrated in all states. The following are some harvest festival. So harvest festival means क्या होता है, स्पेशल स्टेट्स में ये सेलिब्रेट होते हैं, और ये किसान जो कि थ्रू आउट द ईयर हार्ड वर्क करते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है जब उनके जो क्रॉप्स है वो रेडी हो जाते हैं, उसी खुशी में ये सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, द फर्स्ट वन इज़ बैसाखी. बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिकॉज हार्वेस्ट फेस्टिवल स्पेशल स्टेट्स में ही सेलिब्रेट होती है, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा. द मेन परफॉर्म द पॉपुलर डांस भांगड़ा एंड द वुमेन परफॉर्म गिद्धा. सेकेंड वन इज बिहू. बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम. बिग bonfires, singing and dancing are part of the celebration. Young girls dressed in traditional clothes are heard and seen performing Bihu songs and dances.
बिहू जो है असम में सेलिब्रेट की जाती है, एक बोनफायर कर दिया जाता है, उसके चारों तरफ लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सिंगिंग मतलब गाना गाते हैं, और वो स्पेशली बिहू सॉन्ग्स एंड डांस को ही सेलिब्रेट करते हैं बिहू में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ओनम। ओनम इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली इन केरला। ये केरला में सेलिब्रेट होती है। इट इज़ ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सेप्टेम्बर। पीपल गेट टुगेदर एंड ईट फूड ऑन बनाना लीव्स। स्पेशली ओनम में जो लोग होते हैं वो बनाना लीफ पर खाते हैं। स्नैक बोट रेसेस आर हेल्ड, और एक स्नैक बोट रेस ऑर्गेनाइज्ड की जाती है स्पेशली ओनम पर। Now the next harvest festival is Pongal. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. This festival lasts for 3 days and fall in the month of January. Every 3 days different customs are followed. People offer special food to cow and worship it. ओके इस फेस्टिवल पे जो पीपल होते हैं वो काव को, गायों को क्या करते हैं, स्पेशल फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। This is the also harvest festival. Some birthdays are also celebrated in India. The birthdays of some great Indians are also celebrated as festival, like Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on September 5. It is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second president of India. Dr. Radhakrishnan was a great teacher. Now the second important day is Children's Day. Children's Day is celebrated on November 14th every year. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. His love for children was well known. हम सभी जानते हैं कि वो बच्चों से कितना प्यार करते थे. He was called चाचा नेहरू by the children, और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे. So I hope you are understand all these type of festivals. Okay students, now thank you.